Hello students, now we will start with unit number 2 and we will try to understand the second most important component in electronic circuit, that is transistor. Okay, of course, to understand transistor we should have a very good knowledge of a p-n junction diode, its electrical characteristics. Of course, when I say electrical characteristics, that means what happens when it is forward bias, what happens when it is reverse bias. We have done thoroughly, we have done that in the in unit number 1. So assuming that you have understood all those topics of p-n junction diode, let us now shift our focus to transistor. Okay, now if you remember, a p-n junction diode, that has p-type, n-type semiconductor, that is anode and cathode. So when you talk about a p-n junction diode, it is a one junction two terminal device. Okay, it is one junction, only one junction is there, and two terminal device. Of course, two terminals are anode and cathode. As soon as a p-n junction is formed, there is a depletion layer, right? Depletion layer, which is also called as potential barrier. Then you apply external energy so that the depletion in such a way that in first case the depletion layer vanishes, current starts flowing in a p-n junction diode. That is called as forward biasing of p-n junction diode. In forward biasing, P is connected to positive, N is connected to negative. Such a polarity will vanish the depletion layer, and then current starts flowing in a p-n junction diode. And if the reverse polarity is applied, that means P connected to negative, N connected to positive, then the depletion layer width increases, and when the depletion layer width increases, no current flows, only small current, negligible amount of current flows because of minority charge carrier. So that is why p-n junction diode can be used as a switch: forward bias on switch, reverse bias off switch, right? So that was the basic electrical characteristics of a p-n junction diode. Now transistor is a three terminal two junction device. That means it will have two junctions and three terminals. Okay, so depending upon how you dope the impurity, there are two types of transistor. So transistor are of two types. One is NPN, the other one is PNP. Okay, now in case of NPN transistor, P is sandwiched between two N region. This is N, this is N, and this is P. So now we have the three terminals. So what you can see is now we have three terminal, 1, 2 and 3, and two junctions. I will call the junction as J1 and J2. Okay, so and the three terminals are emitter, base and collector. These are the three terminal. Okay, so when you design an NPN transistor, N region will have electrons, P region have holes, and then the N region will again have electrons. Now from of course there will be one more type of transistor. Depending upon how you dope the impurity, their N region will be sandwiched between two P region. The terminal remains the same: emitter, base and collector. Now emitter will have holes because it is a P region, so it will have holes. Base, that is N region, will have electrons,
and again in collector region, which is a P region, now will have holes. Okay, so depending upon how you dope the impurity, the transistor is of two types, NPN and PNP. Now what you can see from the figure itself is that whenever a transistor is fabricated, the three important points has to be noted. Emitter should be heavily doped. Of course, you now have a clear idea of what is doping. Doping is adding impurity. If you say more impurity is added, more will be the charge carrier, right? More will be the charge carrier. Similarly, base is slightly doped. That means very small impurities added to make the base region. It can be a P region, it can be N region, depending upon the transistor which you are fabricating, either NPN or PNP. And then collector is moderately doped. That means doping concentration should be that of between emitter and base. That is very evident from these two figures. What I have shown is emitter, the number of charge carrier in emitter, it can be N or it can be P. The charge carriers are very high. Base is slightly doped, very small amount of charge carrier available in base. And in collector region, what you can see is the concentration of the charge carrier is between that of emitter and base. So we say collector is moderately doped. I hope you have understood. So this is the most important characteristics when a transistor is fabricated. Okay, now next is, let us try to understand transistor connection. Okay, transistor connection. I will give you some permutations and combinations. I will add external polarity to this transistor. You have to see what type of polarity has been applied, and you have to interpret what type of function will be performed by the transistor. Okay, so I will take example of NPN transistor only. Okay, throughout the unit I will be taking only NPN for understanding its working or its operation. Okay, so now transistor connection. Say this is N, this is P, this is N, this is emitter, this is base, and this is collector. Of course, the name emitter, base and collector, I will specify why it is called as emitter, why it is called as collector, and why it is called as base. Okay, so first in transistor connection, say emitter is heavily doped, large amount of charge carrier has to be shown. Base is slightly doped and collector is moderately doped. Okay, now this is junction J1, this is junction J2. Now there will be two junctions always, J1 and J2. Junction J1 is between which two terminals? Emitter and base, EB, and J2 is between collector and base. Okay, so that these are the two junctions. Now see the polarity which I am going to connect, between emitter and base and collector and base. Okay, now in the first case what I am doing is the emitter is connected to negative, base is connected to positive, and the potential which we are going to apply, the voltage which we are going to apply between emitter and base is called as VEB, emitter to base voltage, VEB. Okay, similarly what I'm going to apply at this junction is N region connected to negative, base is connected to positive. Okay, so this is the polarity, again plus
minus. I hope you understand this symbolic representation. And the potential which we have applied here is between collector and base, so it will be VCB. Now you have to recall the forward biasing condition and reverse biasing condition. What happens in forward biasing condition? P connected to positive, N connected to negative. In reverse bias condition, P connected to negative and N connected to positive. Okay. In forward bias condition, the depletion layer vanishes. When I say depletion layer vanishes, matlab resistance offered at the junction will be very small. और अगर रेजिस्टेंस कम है तो करंट इजीली फ्लो होगा, राइट। और वही अगर रिवर्स बायस किया, P कनेक्टेड टू नेगेटिव, N कनेक्टेड टू पॉजिटिव, डिप्लीशन लेयर विड्थ बढ़ती है, रेजिस्टेंस जंक्शन का बढ़ेगा, रेजिस्टेंस अगर जंक्शन का बढ़ेगा तो करंट फ्लो होगा क्या? नहीं होगा, राइट। अब यहां पर क्या किया है, पहला जो जंक्शन है एमीटर बेस, उसमें N कनेक्टेड टू नेगेटिव, P कनेक्टेड टू पॉजिटिव, सेम पोलैरिटी लगाई है अपन ने, P को P से कनेक्ट किया, N को N से कनेक्ट किया, मतलब ये जो जंक्शन है ये हो गया फॉरवर्ड बायस। और अगर फॉरवर्ड बायस हो गया तो वो जो रेजिस्टेंस है उस जंक्शन का वो बहुत कम रहेगा। फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस कम हो जाता क्योंकि डिप्लीशन लेयर वैनिश हो जाएगा। सिमिलरली कलेक्टर बेस जंक्शन में चेक करो आप, N रीजन कनेक्टेड टू नेगेटिव, P कनेक्टेड टू पॉजिटिव, मतलब P कनेक्टेड टू पॉजिटिव, N कनेक्टेड टू नेगेटिव, फिर से फॉरवर्ड बायस हो गया, ये भी फॉरवर्ड बायस हो गया, तो ये जंक्शन में भी जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम रहेगा, राइट। तो दोनों ही जंक्शन में रेजिस्टेंस कम है। रेजिस्टेंस कम है इसका मतलब है चार्ज कैरियर इजीली फ्लो होंगे ट्रांजिस्टर में से, है ना। इसका मतलब है हेवी अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो थ्रू द ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि हेवी अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज थ्रू द ट्रांजिस्टर, हेवी अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज थ्रू द ट्रांजिस्टर, क्योंकि कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं जंक्शन में। तो ऐसा जब कंडीशन पे ट्रांजिस्टर काम करता है, वी से द ट्रांजिस्टर वर्क इन सैचुरेशन रीजन। इसका मतलब है कि ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में काम कर रहा है। तो इसके बाद में जब भी मैं बोलूंगा कि ट्रांजिस्टर इज वर्किंग इन सैचुरेशन रीजन, इसका मतलब हेवी अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू द ट्रांजिस्टर। ये चीजें मैंने आपको पढ़ाई है जब मैंने लॉजिक फैमिलीज पढ़ाया था, पेपर 2 यूनिट नंबर 1 लॉजिक फैमिलीज, उसमें बहुत शॉर्ट में मैंने एक्सप्लेन किया था। ऑफ कोर्स नाउ वी आर एलॉबरेटिंग ईच एंड एवरी कंसेप्ट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द वेरी बेसिक ऑफ ट्रांजिस्टर। ओके, सो अगर मैंने दोनों जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कर दिया तो heavy amount of current will flow through the transistor and the transistor is said to be working in saturation region, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड में see what I am going to do, आप देख के बताएंगे मुझे कि मैंने क्या पोलैरिटी वहां पर लगाई है, ठीक है। सो दिस इज अगेन NPN region, okay, these are electrons, emitter is heavily doped, base is slightly doped and collector is moderately doped. Now see the polarity which I am going to connect the transistor. Okay, now N of the emitter is connected to positive, this is negative, plus minus of this potential किसके बीच में लगाया अपन ने, emitter और base के बीच में, इसलिए इसको बोलते हैं VEB. Similarly between collector base junction, N region is connected to positive, negative, positive, sorry, okay, negative, this is positive, this potential is applied between collector and base, so it will be VCB. okay, now just look at the polarity, ध्यान से पोलैरिटी को चेक करना, आपको समझ में आएगा कि क्या टाइप का अपन ने बायसिंग दिया है, फॉरवर्ड है कि रिवर्स है। रिवर्स बायसिंग है ना, फॉरवर्ड में क्या होता, P कनेक्टेड टू पॉजिटिव, N कनेक्टेड टू नेगेटिव, और रिवर्स बायस में P कनेक्टेड टू नेगेटिव, N कनेक्टेड टू पॉजिटिव। अब देखो यहां पर N कनेक्टेड टू पॉजिटिव, P कनेक्टेड टू नेगेटिव, ऑपोजिट पोलैरिटी लगाई है। इसका मतलब है जो जंक्शन J1 है वो रिवर्स बायस हो गया। रिवर्स बायस में क्या होता है, डिप्लीशन लेयर विड्थ इंक्रीज होती, डिप्लीशन लेयर विड्थ इंक्रीज हो गई मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया।
सिमिलरली जंक्शन J2 आप चेक करो, J2 इज बिटवीन कलेक्टर एंड बेस, N कनेक्टेड टू पॉजिटिव, P कनेक्टेड टू नेगेटिव। फिर से ऑपोजिट पोलैरिटी लगाई आपने। अगर ऑपोजिट पोलैरिटी लगाई तो क्या होगा, फिर से डिप्लीशन लेयर विड्थ बढ़ेगी, जंक्शन रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अब आप देख रहे हो कि ये जो ट्रांजिस्टर का कॉन्फ़िगरेशन है, ये जो कनेक्शन है, इसमें हमने क्या किया, दोनों जंक्शन को रिवर्स बायस किया। तो दोनों जंक्शन का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत बढ़ गया, और अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट फ्लो होगा क्या? ऑब्वियसली नो। सो वी से नो करंट फ्लोज through the transistor. No current flows through the transistor. Of course, very small amount of current will flow because of minority charge carrier, but that will be very, very negligible. Okay. So when both the junctions of the transistor is reversed bias, no current flows through the transistor, and when no current flows through the transistor is said to be working in cutoff, cutoff region. Okay, so now again the same thing has happened which we have studied in PN junction diode. फॉरवर्ड बायस किया, करंट फ्लो होता, रिवर्स बायस किया, नो करंट, है ना, कोई करंट फ्लो नहीं होता। सो डायोड को हम लोग PN जंक्शन डायोड को एज अ स्विच यूज कर सकते। तो ट्रांजिस्टर भी वैसा ही है, अगर दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस है ना, दोनों जंक्शन अगर फॉरवर्ड बायस है तो करंट, बहुत सारा हैवी करंट फ्लोज थ्रू द ट्रांजिस्टर, और अगर दोनों जंक्शन रिवर्स बायस है तो नो करंट फ्लोज थ्रू द ट्रांजिस्टर। तो या तो ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में रहेगा या कट ऑफ में रहेगा। अगर वो सैचुरेशन में है, इसका मतलब है इट इज वर्किंग एज ऑन स्विच, और अगर कट ऑफ रीजन में है, इसका मतलब है द ट्रांजिस्टर इज वर्किंग एज ऑफ स्विच। दैट मीन्स यू कैन यूज द ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। तो एक एप्लीकेशन जो है ट्रांजिस्टर का, दैट इज ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड एज अ स्विच। द अदर एप्लीकेशन इज ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड एज एन एम्पलीफायर। यही चैप्टर के अंदर में मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि हाउ ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड एज एन एम्पलीफायर। ठीक है, तो मैंने आपको ना बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा के बताई है कि ट्रांजिस्टर जो है वो, ऑफ कोर्स द ट्रांजिस्टर वर्क्स इन 3 रीजन, सैचुरेशन, कट ऑफ, एक्टिव। ये मैंने बताया नहीं अभी तक, बट मैंने बताया कि ट्रांजिस्टर कैन बी ट्रांजिस्टर वर्क्स इन सैचुरेशन रीजन एंड कट ऑफ रीजन। ट्रांजिस्टर वर्किंग इन सैचुरेशन रीजन का मतलब है हेवी अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू द ट्रांजिस्टर, एंड ट्रांजिस्टर इज वर्किंग इन कट ऑफ रीजन का मतलब है नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द ट्रांजिस्टर। ओके, सो दिस इज द बेसिक ऑपरेशन। नाउ जो ट्रांजिस्टर जब स्विच करके काम करता है वो नैनो सेकंड में स्विच होता है। नैनो सेकंड में वो सैचुरेशन से कट ऑफ में जाएगा और कट ऑफ से सैचुरेशन में आएगा, है ना। हमने जो पढ़ा है उसके हिसाब से हमको कैसे ड्राइव करना है। अगर हमको सैचुरेशन से कट ऑफ में ले जाना है तो हम क्या करेंगे, दोनों फॉरवर्ड बायस को, दोनों रिवर्स, दोनों जंक्शन जो फॉरवर्ड बायस है उन दोनों को रिवर्स बायस करना पड़ेगा, तब जाके वो सैचुरेशन से कट ऑफ में जाएगा। या पहले ही कट ऑफ में है और अगर सैचुरेशन में ड्राइव करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों जंक्शन जो रिवर्स बायस है उनको फॉरवर्ड बायस करना पड़ेगा। ये हमको खुद को मैनुअली करना पड़ेगा, और मैनुअली अगर हम करेंगे तो वो ट्रांजिस्टर का जो स्विचिंग है वो नैनो सेकंड में पॉसिबल है क्या? ऑफ कोर्स नॉट। आया समझ में? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट करेंगे कि जब भी आप, तो ये जो मैंने पोलैरिटी लगाई है, ऑफ कोर्स आपको समझाने के लिए लगाई है कि व्हाट एग्जैक्टली आई मीन बाय सैचुरेशन एंड व्हाट एग्जैक्टली मीन बाय कट ऑफ रीजन। बट ट्रांजिस्टर को जब आप सर्किट में कनेक्ट करोगे, ठीक है, ट्रांजिस्टर को आप सर्किट में कनेक्ट करोगे तो ये बायसिंग नहीं दोगे। कभी भी दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस नहीं होंगे, कभी भी दोनों जंक्शन रिवर्स बायस नहीं होंगे। ठीक है, सो जो कंडीशन हम पढ़ने का कोशिश करेंगे वो रहेगा कि एमीटर बेस जंक्शन जो है वो हमेशा फॉरवर्ड बायस्ड रहेगा। फॉरवर्ड बायस्ड, एंड कलेक्टर बेस जंक्शन जो रहेगा वो हमेशा रिवर्स बायस्ड रहेगा। ठीक है, emitter base junction will be always forward bias and collector base junction should always be reverse bias। और फिर हम लोग फिर पढ़ने का कोशिश करेंगे कि अगर ऐसा पोलैरिटी लगाया है तो वो ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन कैसे काम करेगा, हाउ द ट्रांजिस्टर विल वर्क, क्या वो NPN हो या वो PNP हो।
आई होप यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू understand the working of NPN and PNP transistor with that biasing. Emitter base junction should be forward bias and collector base junction should be reverse bias. Okay. Next, we will try to understand working of NPN and PNP transistor. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे working of NPN transistor. In the previous section, we tried to evaluate the things that emitter base junction should be the biasing of the, we tried to evaluate the biasing of transistor. So what has to be, how the transistor has to be biased? Emitter base junction should be always forward bias, collector base junction should always be reverse bias. Now applying that polarity, let us try to understand the working of NPN transistor. Okay, so this is your working of NPN transistor: emitter, base, collector. Emitter is heavily doped, base is slightly doped, collector is moderately doped. This is base, this is collector. Okay, now we will when we understand the working of NPN transistor, we also understand why the terminals are called as emitter, base and collector. ठीक है, what I said, emitter base junction should always be forward bias. Forward bias करने के लिए क्या polarity लगाना पड़ता है? Same polarity, n को n से, p को p से, मतलब n region will be connected to negative and p region will be connected to positive. और ये polarity अपन किसके बीच में लगा रहे हैं? emitter और base के बीच में, इसलिए इसको बोलेंगे VEB. ठीक है, और कलेक्टर बेस जंक्शन शुड बी रिवर्स बायस, मतलब पोलैरिटी उल्टी होनी चाहिए, n शुड बी कनेक्टेड टू पॉजिटिव, p शुड बी कनेक्टेड टू नेगेटिव. एंड ये पोलैरिटी अपन किसके बीच में लगा रहे हैं? ये लगा रहे हैं अपन VCB. ठीक है, मतलब कलेक्टर और बेस के बीच में, इसलिए उसको बोलेंगे VCB. तो ये मेरा जंक्शन J1 हो गया, ये मेरा जंक्शन J2 हो गया. अब J1 को आपने क्या किया है? फॉरवर्ड बायस किया, मतलब रेजिस्टेंस कम रहेगा. और J2 को आपने क्या किया है? है ना, रिवर्स बायस किया, मतलब इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा. ठीक है, अब जैसे ये पोलैरिटी आप लगाओगे, सी द वर्किंग. नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्किंग. ये तो उसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया, कनेक्शन हो गया. ठीक है, अब अपन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हेन नेगेटिव पोलैरिटी इज अप्लाइड, है ना. नेगेटिव जब पोलैरिटी आप अप्लाई करोगे एमीटर को, क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स बीइंग नेगेटिवली चार्ज, ये नेगेटिव टर्मिनल से रिपेल होंगे. सो दिस इलेक्ट्रॉन्स विल एंटर इनटू बेस. बहुत सारे चार्ज कैरियर जो है एमीटर से निकलेंगे और वो जाएंगे बेस में. दैट विल कॉन्स्टिट्यूट एमीटर करंट IE. ठीक है, दैट विल कॉन्स्टिट्यूट एमीटर करंट IE, मतलब जितने चार्ज कैरियर एमीटर से निकल के बेस में जा रहा है वो जो हो रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज एमीटर करंट. ठीक है, अच्छा, अब ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल के बेस में जा रहे हैं, लेकिन बेस में तो बहुत कम होल्स है, तो कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रहेंगे जो होल्स के साथ में रिकम्बाइन करेंगे. दैट विल कॉन्स्टिट्यूट बेस करंट IB. बेस करंट IB. ठीक है, और बाकी के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ रहेंगे? ये जंक्शन के पास में, राइट. अब ये क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल. जब वो अट्रैक्ट होंगे तो यहाँ क्या बनेगा? यहाँ बनेगा एम्प्टी स्पेस. अब ये जो एम्प्टी स्पेस है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स जंप करना चाहिए, लेकिन इनके पास में इतनी एनर्जी है क्या? नहीं है. लेकिन अब क्या हो रहा है? ये जो एमीटर से चार्ज कैरियर बेस में आ रहे हैं, यहाँ पर जंक्शन के पास में भी, यहाँ पर भी अभी बेस में भी इलेक्ट्रॉन्स है. ये इलेक्ट्रॉन्स इनको फोर्स करेंगे सो दैट दे शुड जंप इनटू दैट एम्प्टी स्पेस. समझ में आया? तो ये अब यहाँ पर एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो गया. एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो गया तो फिर से ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जंप कर जाएंगे. दैट मीन्स रिवर्स बायस होने के बावजूद भी जो चार्ज कैरियर एमीटर से निकले थे, कुछ चार्ज कैरियर बेस में रिकम्बाइन हुए और बाकी के जो चार्ज कैरियर है दे विल बी इनटू कलेक्टर. तो जैसे आपको नाम समझ में आया, एमीटर ये एमिट कर रहा है इसलिए एमीटर, ये कलेक्ट कर रहा है इसलिए कलेक्टर, और ये जो है बेस जो है ये कंट्रोल करता है ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन को, इसलिए उसको बोलते हैं बेस. ठीक है, सो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जंप कर जाएंगे and all these electrons will then get attracted by the positive
टर्मिनल, ठीक है। तो ये जो कलेक्टर से करंट फ्लो होगा, कलेक्टर में जो चार्ज कैरियर अक्यूमुलेट होकर पॉजिटिव टर्मिनल में जाएगा, दैट विल बी कलेक्टर करंट IC, कलेक्टर करंट IC, ठीक है। नाउ व्हाट यू कैन सी इज, ये जब चार्ज कैरियर एमीटर से कलेक्टर की तरफ में जा रहे हैं, पहला जो जंक्शन है वहां पर रेजिस्टेंस कम था, और जब दूसरा जो जंक्शन के पास में गए वहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा था। that means when the charge carriers are moving from emitter to collector, they are experiencing transfer of resistance। समझ में आया कि पहले रेजिस्टेंस कम था और फिर रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया। तो जब चार्ज कैरियर मूव कर रहे हैं, सो दे आर एक्सपीरियंसिंग ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस, और उसी से उसका नाम आया ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर इज अ एब्रीविएशन, क्या है, इट्स अ ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस। आया समझ में, ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस। सो दिस इज द बेसिक ऑपरेशन ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है। अब ध्यान से देखना कि यहां पर करंट का डायरेक्शन कैसा रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स यहां से जा रहे हैं बेस में, बेस से, है ना, बेस में रिकंबाइन हो रहे हैं होल्स के साथ में, बाकी इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं कलेक्टर में, एंड देन दे आर अट्रैक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, है ना। और इलेक्ट्रॉन्स बीइंग नेगेटिवली चार्ज, वो हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव में जाएंगे, बरोबर है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में करंट का जो डायरेक्शन रहता है वो कन्वेंशनल रहता है, पॉजिटिव से नेगेटिव में। तो यहां पर कैसा रहेगा डायरेक्शन ऑफ करंट, पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब एरो मार्क बेस करंट जो रहेगा IB, एरो मार्क इनवर्ड, एमीटर करंट एरो मार्क आउटवर्ड, और यहां पर भी पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब कलेक्टर करंट जो रहेगा इनवर्ड। सो दिस इज द बेसिक ऑपरेशन ऑफ NPN ट्रांजिस्टर। अब इसमें जो 100% एमीटर करंट निकलता है, मतलब जितने चार्ज कैरियर निकलते, सपोज 100 चार्ज कैरियर निकल रहे हैं, उसमें से सिर्फ 2%, मतलब 2 चार्ज कैरियर रिकंबाइन करेंगे बेस के साथ में, बाकी पूरे के पूरे जो 98% है, मतलब 98 चार्ज कैरियर जो है वो पूरे कलेक्टर में जाके पॉजिटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होंगे। मतलब बेस करंट स्लाइटली डोप्ड है, इसका मतलब है बेस करंट विल बी ऑलवेज नेग्लिजिबल। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि IE इज ऑलमोस्ट इक्वल टू IC। बहुत जगह पे हम लोग ये प्रिंसिपल यूज करेंगे कि IE इज ऑलमोस्ट इक्वल टू IC, कलेक्टर करंट, एमीटर करंट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू कलेक्टर करंट। समझ में आया? सो दिस इज द ऑपरेशन ऑफ NPN ट्रांजिस्टर। Let us now try to understand working of PNP transistor. Okay, PNP transistor. Again we have emitter, base and collector. This is PNP transistor. Holes emitter में ज़्यादा रहेंगे क्योंकि emitter should be heavily doped, base should be slightly doped and collector should be moderately doped. This is emitter, this is base and this is collector. Now क्या polarity लगाना है अपने को? मैंने बताया कि whenever a transistor has to be connected in a circuit, emitter base junction should be forward bias. So forward bias मतलब P connected to positive, N connected to negative, plus minus this potential is applied between emitter and base, इसलिए VEB. और collector base junction should always be reverse bias. So N connected to positive, N connected to positive, P connected to negative, plus minus this potential is called as VCB. ओके, फिर से ऑपरेशन कैसा रहेगा? पॉजिटिव चार्ज होल्स को रिपेल करेंगे, बहुत सारे होल्स जो है वो मूव करेंगे एमीटर से बेस की तरफ, राइट, दैट विल कॉन्स्टिट्यूट एमीटर करंट IE, है ना। और इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम है बेस में, इसलिए वेरी फ्यू होल्स विल रिकंबाइन विद द इलेक्ट्रॉन्स, दैट विल कॉन्स्टिट्यूट बेस करंट IB. रिमेनिंग ऑल द होल्स विल मूव इनटू कलेक्टर एंड गेट अट्रैक्टेड बाय द negative terminal of the battery, that is VCB, that will constitute collector current IC. As I said again, out of 100% of IB, only 2% goes into base and remaining 98% goes into collector region. Okay, now see the direction of current. What we have done is junction J1 को अपन ने forward bias किया, इसलिए resistance कम रहेगा, J2 को reverse bias किया, इसलिए resistance ज़्यादा रहेगा। डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब इनवर्ड टूवर्ड्स
IE आउटवर्ड्स टूवर्ड बेस, और यहाँ पर भी पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसा आएगा, सो आउटवर्ड्स टूवर्ड्स कलेक्टर. ओके, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाएगा. ओके, सो एज IE is almost equal to IE, हम लोग ऐसे ही लिखेंगे IE is almost equal to IC. So this is the operation of or the working of NPN and PNP transistor. Okay, now from this diagram or the way in which the current flows, we can derive the symbolic representation of the transistor. The symbolic representation remains same for both NPN as well as PNP transistor. Okay, so this is always the base terminal, this is always the collector terminal, and this is always the emitter terminal. अब अपन आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सा NPN है और कौन सा PNP है, उसके लिए डायरेक्शन ऑफ करंट अपने को मालूम होना. इन केस ऑफ NPN ट्रांजिस्टर करंट इज मूविंग आउट ऑफ एमीटर. ठीक है, तो एरो मार्क जो है हम लोग बाहर की तरफ देंगे. अगर एरो मार्क बाहर की तरफ है, इसका मतलब है ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है NPN ट्रांजिस्टर का. और यहां पर कैसे हो रहा है, करंट का डायरेक्शन एमीटर के अंदर जाएगा, है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इनवर्ड्स टूवर्ड्स एमीटर. तो अगर एरो मार्क ऐसा है, ठीक है, इट इज टूवर्ड्स द एमीटर, then this is the symbolic representation of PNP transistor. Now hereafter, having understood the working of NPN and PNP transistor, now we will use the symbolic representation of the transistor to understand the different configuration of transistor in the next session. I hope you have understood. Thank you.